अगर उस घर में मच्छर उस पेशेंट को काटता है और किसी दूसरे को काटता है, then he can transmit that virus to another person. First prevention can be done by wearing good cloths, full body covered cloths, and using mosquito net and in the night. Peppermint oil, thyme oil, neem oil, and clove oil. They don't have any side effect on the child's skin or any other organ. Hi guys, this is Meena Diwan and you're watching HealthSite and India.com. Today we have with us Dr. D.K. Gupta, Chairman and Managing Director, Felix Hospital. Hi sir, how are you? Hi, good morning. How are you, ma'am? I'm good sir. Hoping the same Thank for you. So sir, the very first question that comes in my mind looking at the current situation is there is such a huge spike in dengue cases these days. So what are the early symptoms of dengue fever? कैसे उसे earlier stage पे ही हम identify कर सकते हैं? Yeah, I mean, it's a great question, I think. And parents or patients can identify the earliest symptoms, like they can have severe high-grade fever, means fever can go up to 104 and 105 degrees centigrade, and it will be associated with severe headache, especially periorbital headache, means around the eye pain. And muscle pain, joint pain, sometimes nausea, vomiting, and sometimes patient can have rashes and swollen glands also, like these type of glands around the neck. Okay. These can be the earliest symptoms of dengue fever, and it can be similar with malaria, typhoid. The differential diagnosis can be malaria and typhoid also, and other viral fever also, even COVID also. But everybody should be very careful during these symptoms also. We have to rule out other disease also. तो सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक नॉर्मल फीवर में या एक मलेरिया फीवर में या कोविड के फीवर में और डेंगू के फीवर में? तो नॉर्मली जो डिफरेंशिएट करते हैं कि जो फीवर होता है डेंगू का, दैट इज वेरी हाई ग्रेड फीवर 104 एंड 105, एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सीवियर हेडेक एंड पेरीऑर्बिटल पेन, मींस आई के आसपास आपका दर्द होगा, मसल और जॉइंट पेन होगा. नॉर्मली मलेरिया में फीवर विद चिल्स आता है, देयर इज headache but it's not too much, body ache and joint pain बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, but there is no history of other symptoms like pain behind eyes and swollen glands, rashes नहीं होते हैं इसमें मलेरिया में. You can differentiate from malaria on these basis. And typhoid also, fever will be even up to 100 and 103. It can be also with vomiting, pain abdomen, but muscle pain and joint pain are less. But still I will tell you, it's very difficult to differentiate. We have to investigate, we have to test to rule out malaria, typhoid and COVID also. If somebody is having history of high grade fever, headache, vomiting and pain behind eyes, then definitely if that patient develops severe stomach ache, means severe pain abdomen, persistent vomiting, even if he is having bleeding from gums or nose, or bleeding in urine or stool or vomit, or he is having rashes on the skin, red bruises on the skin, or he is suffering from low BP, or he is having difficulty or rapid breathing, or having severe weakness or fatigue, then these are the dangerous signs, these are the dangerous symptoms, and patient should immediately rush to the nearest doctor, nearest hospital. Also sir, so what are the different types of dengue fever? So dengue fever is categorized in 3 types. First is simple dengue fever, second is dengue hemorrhagic fever, and third is dengue shock syndrome. So 90% patients will suffer from the simple dengue fever, and they will recover within 2 weeks, means 10 to 14 days normally. And patient will have symptoms as I have earlier explained, and they will recover without any sequelae or complication. And patient need to take rest and paracetamol and fluids for this recovery and nothing else. However, 8 to 10% patients can go into complication, and first complication is known as dengue hemorrhagic fever, means there will be leakage of fluid of blood in the capillaries, in the skin and other organs of the body. So that is one of the complication of dengue fever, and these patients need to be admitted. Third, it is severe complication of dengue. It is known as dengue shock syndrome, means patient will have low blood pressure, and this low blood pressure will be associated with the multi-organ dysfunction, means it will involve liver, kidney, lungs, heart and other organs of the body. Means mortality rate can be 1 to 2% in these patients, and these patients will require intensive care unit and treatment in supervised doctor's team, and they will also require life and saving drugs and support system sometimes in the ICU. और डॉक्टर अगर बात करें तो बच्चों में भी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है डेंगू की, स्पेशली इन किड्स. इट्स रियली ऑन द
हायर एंड. So, इसका कोई खास रीजन है, स्पेशली कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन एंड करंट टाइम? देखिए, अभी हम बात करें तो देयर वर 4 स्ट्रेन्स ऑफ डेंगू. अगर हम अभी बताया, मैंने टाइप ऑफ फीवर बताया था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आल्सो. इवन जो टाइप 2 स्ट्रेन है, दैट इज little more virulent and that can cause severe illness, especially in children, as we have seen in North India and several districts of UP and other parts and Delhi NCR. There was more involvement of children during this dengue season and they were serious also. Lots of children required hospitalization and few required ICU care also. The reason is that the strain type 2 strain is infecting more kids, and definitely we know kids, they are not following all the preventive rules to prevent the mosquito bite that can lead to the transmission of this dengue virus inside them. Therefore, parents should be very careful. They should, because we don't have vaccine for the dengue fever. Most of the vaccine we give children, but it doesn't include dengue fever vaccine. Therefore, only prevention is the cure. Therefore, they should not send them out. If they are going out, they should wear long sleeve shirts, long pants, shoes and socks whenever they are going outside. Even they should use mosquito repellent, or even they should use mosquito net और मच्छरदानी रात को सोने से पहले लगानी चाहिए उनको. मॉस्किटो रिपेलेंट डायरेक्टली हम किड्स को लगा सकते हैं. आज की बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट आ गए हैं, वो लगाने चाहिए. अगर बच्चों को फीवर आता है, बच्चों को हाई ग्रेड सिम्टम्स जो मैंने अभी डिस्कस किए वो आते हैं, देन डेफिनेटली पेरेंट्स शुड विजिट नियर बाय डॉक्टर. और अगर हम जनरली प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम द रिपेलेंट, इज देयर समथिंग दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड्स, टू सॉर्ट ऑफ prevent as much as possible from the fear of dengue or from this illness? हाँ, तो एक जो चीज हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज जो हमारे घर में जो पानी इकट्ठा होता है, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं जो एडिस मॉस्किटो दैट इज बेसिकली फाउंड इन द फ्रेश वाटर, और ये डे में ज्यादा काटता है और इसकी जो फ्लाइट है बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है. तो अगर हम घर में आसपास जो हमारे कूलर हैं या हमारे जो प्लांट्स के जो पौधे हैं, गमले हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, या हमारे मोहल्ले में पड़ोस में कहीं पे साफ पानी भरा हुआ है आसपास, बिकॉज इस बार बारिश बहुत सारी हुई थी, बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ था, इसकी वजह से एडिस का जो ग्रोथ थी वो बहुत बढ़ गई थी, इसकी वजह से डेंगू इस पर ज्यादा फैला है. तो अगर हम आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देते हैं, अगर पानी कहीं इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पे कोई लार्विसाइड का छिड़काव करा दें, आसपास जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म कर दें, उसकी वजह से पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर नहीं आएगा, तो मच्छर काटेंगे नहीं तो डेफिनेटली इन्फेक्शन नहीं होगा. और अगर किसी को घर में डेंगू फीवर हो गया, इट मींस ही इज इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस एंड डेंगू वायरस रिजर्वायर हो गया वो उसके अंदर. अगर उस घर में मच्छर उस पेशेंट को काटता है और किसी दूसरे को काटता है, देन ही कैन ट्रांसमिट दैट वायरस टू अनदर पर्सन. तो अगर घर में अब किसी को डेंगू होगा तो डेफिनेटली जिस पेशेंट को डेंगू हुआ है उसको मच्छरदानी के अंदर रखना चाहिए. प्लस घर में भी हमें पेस्ट कंट्रोल करा लेना चाहिए कि अगर कोई मच्छर है जिसने ऑलरेडी काटा हुआ है तो वो दूसरों को और ना काटे, जिससे दूसरे लोगों को भी डेंगू फैलने के चांसेस कम हो जाए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट सर, ऑल्दो वैक्सीन तो नहीं है डेंगू की कोई, बट क्या ट्रीटमेंट में कोई न्यूअर एडवांसेस हैं? ट्रीटमेंट में देखिए, इसका सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. मींस सिम्टोमेटिक मींस अगर फीवर है, कफ है, तो फीवर और कफ के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी. फीवर के लिए नॉर्मली हम पैरासीटामोल देते हैं. इवन फर्स्ट 2 days तो मैं बहुत 4 to 6 आवरली पैरासीटामोल की जरूरत पड़ती थी, बिकॉज फीवर इज वेरी हाई ग्रेड. नंबर 2, हमें प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देने चाहिए सो दैट कि उनको पानी की कमी ना हो. नंबर 3, अगर साथ में हम लोग अभी देते हैं जो कुछ दवाइयां हैं जो 4 से 5 दिन बाद ऐसा होता है कि लोगों की प्लेटलेट्स कम होने के चांसेस रहते हैं, तो उन दवाइयों का हम यूज कर सकते हैं. जैसे कैरिपिल टेबलेट है जिसके अंदर पपाया का एक्सट्रैक्ट होता है, तो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा सकता है. फॉलवाइट है जो हमारे प्लेटलेट को बढ़ाने में काम करती है. कुछ मल्टीविटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनको हम दे सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं. तो दिस इज द बेसिकली ट्रीटमेंट. अगर पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेट हो गया है, किसी को डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया है, पेन ऑफ डेमन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, ब्लड्स आ रहे हैं, तो उस समय हमें अलग उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं अगर लो ब्लड प्रेशर है. अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इंजेक्शन देने पड़ते हैं. अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है उसके लिए ऑक्सीजन एंड नेबुलाइजेशन देना पड़ता है. तो डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट की कंडीशन है, कौन से सिम्टम्स हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सबका ध्यान देना चाहिए. प्लस हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए. अगर पेशेंट को डेंगू हो गया तो उसको हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, रेगुलर बात लेना चाहिए, ओरल केयर अच्छी होनी चाहिए, उसकी बॉडी केयर होनी चाहिए, स्पॉन्ज बात होनी चाहिए. अगर नहीं ले सकता है बात ले सकता है, हमें हैंड हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए. और दूसरा मॉस्किटो नेट वगैरह जो वो यूज करना चाहिए. और सर वैक्सीन की अगर बात करें, क्या कोई करेंटली डेंगू की न्यूअर एडवांसमेंट्स हैं, कोई वैक्सीन है व्हिच कैन हेल्प इन डेंगू ट्रीटमेंट?
वैक्सीन की एक WHO मैंने डेंगू की एक WHO अप्रूव्ड वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, यूएस वगैरह में अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। इवन एज ग्रुप में भी वो 8-9 प्लस एज ग्रुप में हम दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दे नहीं सकते। दूसरी बात, उन लोगों को नहीं दे सकते जिनको डेंगू हो चुका है, तो इसलिए उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, साइड इफेक्ट और सीरियस रिएक्शंस हो सकती हैं उसमें, तो इसलिए वो यूज में नहीं है। तो अभी सरकार को और हमारे जो हेल्थ एजेंसीज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनको फोकस करना चाहिए, वी शुड हैव एक वेरी गुड डेंगू वैक्सीन, बिकॉज अभी हम सबको पता है कि डेंगू से मॉर्टेलिटी काफी बढ़ गई है और ये हर साल कम या ज्यादा रूप में आता ही है। तो डेंगू की वैक्सीन डेवलप करने पे काम करना चाहिए। और क्या कोविड-19 ने किसी भी तरीके से इफेक्ट या इम्पैक्ट किया है द डेंगू केसेस इन द करंट सिनेरियो? नहीं, अभी कोविड तो अच्छी बात है, कोविड केसेस नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट खासकर दिल्ली एनसीआर में बहुत कम है, ना के बराबर है। हम लोग सब पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, बिकॉज कोई भी कोविड जो सिम्टम्स डेंगू के हैं वैसे ही सिम्टम्स रफली कोविड के भी होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेंगू के साथ कोविड भी हो सकता है, इसलिए हमें वॉच रखना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट फीवर के साथ है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट फेवराइल इलनेस बोलते हैं कंबाइंडली। अगर बात करें, कोई भी पेशेंट एक्यूट फेवराइल इलनेस का आता है तो उसका डेंगू टेस्ट होना चाहिए, मलेरिया टेस्ट होना चाहिए, टाइफाइड होना चाहिए और साथ में कोविड होना चाहिए। तो ये बेसिक टेस्ट तो होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर हमें कोई फोकस नहीं मिल रहा है तब उसका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दूसरे टेस्ट करते हैं। अरे, I think sir this has been fab. Thank you so much. Audiences will go back home with lots and lots of valuable insights. Thank you इतनी सारी information share करने के लिए. Thank you so much. It was pleasure meeting with you and have a great day. Thank you so much. Thank you so much. Have a great day, sir. Thank you for joining.